ICA Inter students, how are you? How's the preparation going? So an important update today for all of you, and it's a bonus, I guess, for all of you. That I have shared last week the strategies and the chapters which are A categories for the CA Inter students. And in the front of each chapter, I have also mentioned the number of days in which that chapter gets completed, should get completed. So I am planning from this week that I will be covering the chapters which I have mentioned there, A category chapters, in which audit strategy, planning and audit program is also one of them, one of those chapters. So we will be covering in those specific days only, like 2 days or 3 days only, which I have mentioned there, right? फिर उसके बाद अगर आपसे वो अगर आपको मेरे साथ साथ करना है तो दैट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चन बैंक MCQs. वी कैन नॉट लीव देम, right? And otherwise, if you have already started something, then you can continue that also. It's up to you people only, right? Let's begin this chapter number 2, audit strategy, planning and audit program. So I will be covering it from the study mat just to give you a detailed understanding of the same, and I will then explain you to highlight the key matters and the keywords, and then in this lecture only we will learn the chapter also, right? So in the 3 days what we are planning to do, in the 1.5 days or say 2 days, we will cover the entire chapter along with the learning of the same, and then the next day we will cover the MCQs and the question bank of the ICI, right? So please stay attentive in the class, because ये class में इधर उधर अगर हो जाओगे तो conceptual clarity नहीं आएगी, and conceptual clarity is very much important. So by not wasting much of the time, let's begin the chapter. So the first of all, we should understand that what in an audit planning, what should we include when we plan an audit. Because अगर आपको किसी का audit आता है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते, अच्छा मेरे पास audit आया चलो start कर दो. Even if you have an exam in September or maybe in January 26, then also you have to make some concrete plan. एंड उस कॉन्क्रीट प्लान एक ब्रॉड प्लान होता है, उसके अंदर आपको फिर छोटी छोटी ब्रेक करके उसमें एक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है. अच्छा मेरी FR की स्ट्रैटेजीज ये है, मेरी अकाउंट्स की स्ट्रैटेजीज ये हैं, ऑडिट की हैं, टैक्स की लिए हैं, राइट? सो इन द सेम वे इफ यू हैव गॉट सम क्लाइंट, ठीक है, उसके बाद आपने एंगेजमेंट लेटर्स वगैरह सब साइन कर दिए, उसके बाद नाउ यू नीड टू प्लान दैट ऑडिट कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड इट. ठीक है, आपको कौन से प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, आपको कौन से टीम मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे. यू कैन नॉट हायर एनी ऑफ द टीम मेंबर, यू हैव टू चेक द कैपेबिलिटीज, यू हैव टू चेक कि अच्छा मेरा जो एरिया है जिसका मुझे ऑडिट करना है वो कितना कॉम्प्लेक्स है. So these are the certain points which we will be covering in depth in the ongoing lecture. तो प्लीज स्टे अटेंटिव, एंड इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे. इट्स नॉट लाइक कि अच्छा बस रीड कर लिया, पैसिवली रीड कर लिया एंड देन इट्स डन एंड देन यू जस्ट नीड टू क्रैम दैट. नो, वी विल अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ. ठीक है. So the planning involves, what does the planning involve? So the planning first of all involve the audit strategy and then we have the audit plan. ठीक है. तो जब audit strategy आपकी बन जाएगी ना, उसके बाद then we will plan an audit. ठीक है. तो ऑडिटर जो है वो, आप खुद बताओ ऑडिटर को किस तरीके का प्लान बनाना चाहिए. इफ आई आस्क यू कि आपको किस तरीके का स्टडी प्लान बनाना चाहिए इफ यू आर सिटिंग फॉर द September 25 एग्जाम्स, तो आपको एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे एक तो आपका सिलेबस ना बहुत ही टाइमली खत्म हो, आपकी रिविजन्स बहुत ही टाइमली खत्म हो. सेकेंडली आपका जो भी चीज खत्म हो रही है, इट्स नॉट जस्ट खत्म हो रही है कि बाय 15 I have to complete this. This is one thing कि अच्छा ठीक है आपको एक हफ्ते में ये complete करना है, but in what way you should complete it in a very effective and in a very efficient manner. ठीक है. वो productivity, वो efficiency, वो quality, वो effectiveness, that should reflect in your study plan, that should reflect in the syllabus that you will be covering for the next week. So in the same way, whenever the auditor makes a plan, so that plan actually help him to complete the audit or to conduct the audit in a very effective, efficient manner, on a timely basis. समझ आया? तो आपको इस तरीके से ऑडिटर को प्लान करना है अपना काम टू एनेबल हिम दैट ही कुड कंडक्ट द इफेक्टिव, एफिशिएंट इन द टाइमली मैनर. ठीक है. तो EET, अब जब आप प्लान करते हो ऑडिट को या जब आप अपनी स्टडी को प्लान करते हो, तो अनटिल एंड अनलेस आपको पता होगा कि यार ऑडिट में 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर्स में ये वो है, मतलब कोई चैप्टर बहुत लेंथी है, कोई चैप्टर थोड़ा शॉर्ट है, कोई चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई चैप्टर थोड़ा सिंप्लीफाइड है. तो अनटिल एंड अनलेस आपको वो नॉलेज होगी
उस ऑडिट के सिलेबस की, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ इफेक्टिव प्लान, बिकॉज फिर तो आप एक वेग प्लान बना रहे हो ना, फिर तो आप तो कुछ भी कर रहे हो, वो नहीं करना हमको। हमको क्या करना है, हमको पहले उस चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब हमको वो नॉलेज मिल जाएगी तो हमें समझ में आएगा नहीं यार इस वाले चैप्टर में मे बी 3 दिन लगेंगे, दूसरे वाले चैप्टर में मे बी 5 डेज लगेंगे। तो until and unless हमको वो नॉलेज होगी, हम तो कुछ भी नंबर ऑफ डेज लिख देंगे while we plan our preparations, right? So for in the same way, whenever you are making the audit plan, it should be based on the knowledge of the client's business, कि आपको क्लाइंट का बिजनेस पता हो, ठीक है। एंड थर्ड चीज, जब आप प्लान बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता ना आप 100% अपने प्लान पे हो। भाई आपका कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यार मतलब आज का डे मेरा, अगर सपोज आई हैव अ प्लान फॉर 10 आवर्स टुडे टू स्टडी ऑडिट, और उस 10 आवर्स में मुझे सपोज ये चैप्टर्स करने थे, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो चीजें नहीं हो पाई हैं, या अगर आप आगे जाते हो और आपको पता चलता है कि माई स्पीड इज स्लो, या आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये वाला पार्ट भी तो था विच आई हैव स्किप्ड व्हाइल प्लानिंग माई स्टडी प्लान, ठीक है, मतलब इसमें 2 चीजें और भी फालतू थी विच यू हैव रियली स्किप्ड टू इनकॉर्पोरेट इन योर ऑडिट प्लान। तो आप ऐसा नहीं है ना कि वो प्लान इज वेरी रिजिड, it is very flexible plan, you can revise it, you can develop it further, you can add something in it, you might delete something from it, so plan should be further developed and revised as necessary। समझ में आया? तो आपका जो प्लान होता है वो रिवाइज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका प्लान है वो कभी रिवाइज ही नहीं हो सकता। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट काइंड ऑफ द प्लान यू शुड हैव, इट शुड बी अ वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर on the basis of the business of the client, and it should not be very rigid, you should be able to revise it as and when it is needed। इतना समझ आ गया? I think this is far much, मतलब this is very much clear now, right? तो अब हमारे पास आता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड व्हाई द प्लानिंग इज नेसेसरी। अब हमें समझ में आया कि जब हमको प्लान करना ऑडिट तो हमको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे हमको प्लान बनाना है, ठीक है। तो ऑडिट में एक ऐसे होता है ऐसे 300 जिसका नाम ही यही है कि प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको प्लान करना है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऐसे 300, ये ऐसे 300 में ही आता है। अब उसके बाद आते हैं कि वाई द प्लानिंग इज नेसेसरी, कि आपको क्यों लगता है कि प्लानिंग नेसेसरी होती है। मतलब अगर आप खुद अपना थोड़ा दिमाग चलाओ तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि यार मतलब हम प्लानिंग करके क्या कर लेंगे। वाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट इन ऑडिट, इवन इन योर स्टडी, इवन व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग पोस्ट सीए और पोस्ट क्वालिफिकेशन, आप एक प्लान बनाते हो, इवन हर चीज का एक प्लान बनता है यार। सो वाई दैट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। सो इफ वी टॉक अबाउट ऑडिट की ऑडिट में प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल हेल्प यू टू लर्न दिस 6 पॉइंट्स। तो फर्स्ट है हमारे पास कि आपको ना एक तो पता चल जाता है कि अगर सपोज मैंने ऑडिट प्लान करा है, तो अब जब आप ऑडिट प्लान कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, उसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो जैसे आप एनालिटिकल रिव्यू लेते हो, डेस्कटॉप रिव्यू होता है, जैसे सपोज आपके पास क्लाइंट के फाइनेंशियल्स आए हुए लास्ट ईयर के, यू जस्ट टेक अ बर्ड्स आई व्यू कि अच्छा यार इसमें लास्ट ईयर ऐसे था, लास्ट टाइम ऑडिटर ने ऐसे किया था, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑडिटर तो मेरे को इस साल किस तरीके से करना पड़ेगा, मैं कैसे प्लान करूँ, ठीक है। तो जब आप एक बर्ड आई व्यू लेते हो ना तो आपको मोटा मोटा पता चल जाता है। बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊपर ऊपर से जब आप देखते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा इसमें इस इंडस्ट्री के हिसाब से इसके इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हो सकते हैं, या इस इंडस्ट्री के हिसाब से मैं कौन कौन सी चीजें लेटर ऑन में देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि आपको ना उस व्यू से पता चल जाता है कि हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट द अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको अप्रोप्रिएट अटेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने डेटर क्रेडिटर को प्रॉपर अटेंशन ही नहीं दी, जबकि आपको पता लग रहा है कि डेटर क्रेडिटर इज वन ऑफ द की एरियाज इन दिस ऑडिट, ठीक है, इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस क्लाइंट। तो आपको वो ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट अटेंशन भी देनी पड़ेगी। किसको अप्रोप्रिएट अटेंशन देनी है? इंपॉर्टेंट एरियाज को। फॉर एग्जाम्पल whenever you are planning the whenever you are making the plan for say accounts, for say audit, for say IDT, for say DT, ठीक है, या जो भी आपके पास चैप्टर्स हैं, SM, तो आपको ये समझना होता है कि अच्छा अगर मेरा ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना है तो उसमें मुझे कितने दिन देने हैं। यू विल नीड एटलीस्ट 5 days बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर, ठीक है। सो दैट इज वाई यू नीड टू गिव द अप्रोप्रिएट अटेंशन। ऐसा तो नहीं आपने यार ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिर्फ 2 दिन ही अलॉट कर रखे, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, यू वोंट बी एबल टू ग्रैस्प द एंटायर कंसेप्ट्स एंड
check out the details of it in just 2 days, आप नहीं कर पाओगे. So that in the similar way audit को भी important areas के लिए अपना ध्यान देना पड़ता है कि मेरे कौन कौन से important areas है. और अगर आपको important areas भी पता चल गए, ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, जब आपने अच्छे से प्लान कर रखा है ऑडिट, आपको सब पता है कि अच्छा मेरा इस तरीके से प्लान जाने वाला है, तो इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी व्हेनेवर वी आर डूइंग ऑडिट. ऐसा तो नहीं होगा सब स्मूथ सेलिंग निकल के आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, मे बी सपोर्ट्स नहीं होंगे, मे बी क्लाइंट ने ढंग से फाइनेंशियल्स रिप्रेजेंट कर रखे होंगे, मे बी किसी चीज में एरर आ रहा है, मिस स्टेटमेंट्स आ रही हैं. तो जो भी ये चीजें होंगी, जब हमने ऑडिट को प्लान कर रखा है, तो एटलीस्ट हमारे पास वो प्रॉब्लम्स जो हैं या जो हमारे पास रिजॉल्व करने का उसको टाइम है, वो हमको एक ढंग से पता चल जाएगा, ऑन अ टाइमली बेसिस हमको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम. जो भी हमारे पास हमें लगता है एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ये आने वाली हैं, उसका हम अपने हिसाब से टाइम देके चलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान. ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करते हैं कि ये सब देख के, बर्ड्स आई व्यू देख के, ठीक है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, देन ही विल डिसाइड कि अच्छा मुझे कौन कौन से टीम मेंबर्स को या कौन कौन सी मेरी एंगेजमेंट टीम होगी जो इस ऑडिट को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में खत्म करेगी. तो हेल्पिंग द ऑडिटर टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. अगेन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, इस तरीके से आप पूरा एंगेजमेंट प्लान करो. ठीक है, और उसके बाद जब आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी, तो एटलीस्ट यू सेलेक्ट द टीम मेंबर्स विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेंस. सपोज मेरी प्रोफिशिएंसी या मेरी कॉम्पिटेंस है कि मैं पीपी का बहुत अच्छा ऑडिट कर सकती हूँ, तो मेरे को आप पीपी वाला एरिया दे दो. किसी को है कि वो लीज का एरिया बहुत अच्छे से कर सकता है, तो गिव दैट एरिया टू दैट पर्सन. किसी को होता है वो पीएनएल आइटम्स बहुत अच्छे से कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली जिसका लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस है, यू हैव टू give that engagement team member area which they are capable of doing it. ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने एरिया दे दिया, इट डजंट मीन कि अच्छा अब ये सब अपने आप कर लेंगे. एटलीस्ट यू हैव टू सुपरवाइज द सेम. ठीक है, एटलीस्ट यू कैन गिव द डायरेक्शंस टू द सेम, यू कैन सजेस्ट, यू कैन रिव्यू देयर वर्क. ठीक है, तो आप क्या करते हो, फैसिलिटेट करते हैं डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, एंड कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होता है एक्सपर्ट से वेयर एवर इट इज नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लाइंट ने किसी एक्चुरियल वैल्यूएशन कराई है किसी चीज की, या मे बी उसने किसी लिटिगेशन के केस में लीगल एडवाइस लिया है. वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन लीगल एडवाइजेस, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन एक्चुरियल वैल्यूएशन, सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट्स, है ना. एंड व्हेन वी आर टेकिंग द help from that expert, we have to coordinate with them also. ठीक है, उस हिसाब से आपको अपना coordination भी चलाना पड़ेगा. So these are the things which actually which planning help us to हेल्प. बेसिकली प्लानिंग से हमको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारे एरियाज में हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लान एंड हाउ वी आर गोइंग. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट एरियाज. जब आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पता चल जाएंगे, तो आपको पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पता चल सकती हैं. पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी पता चल गई आपको, आप एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि आपको ऑडिट किस तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में लेके जाना है. आपका सिलेक्शन टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज. ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्शन एंड सुपरविजन आप कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द एक्सपर्ट्स वेयरएवर इट इज नेसेसरी. ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको लर्न कराती हूँ, इसको हमने, अगर आप बोलो कि यार मुझे ये वाला चीज है ना, ये आप लर्न कराते हो. ठीक है, तो पहला तो अब हम पहले इसमें क्या करते हैं, हम ना इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं. सो द फर्स्ट कीवर्ड हियर इज अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज. ठीक है, अटेंशन, अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं. अटेंशन टू प्रॉपर एरियाज, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, राइट. उसके बाद आप क्या करना है, मैनेज करना है किसको, ऑडिट एंगेजमेंट को, किस चीज के लिए, सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो ऑडिट एंगेजमेंट को, सो दैट इट कैन बी डन इन द इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट मैनर. ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन किसका, ईटी का, क्यों कर, किसके हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से एंड कॉम्पिटेंस के हिसाब से. एंड लास्ट में आपने उनका क्या करना है, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ईटी मेंबर्स. और उसके बाद क्या करना है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सपर्ट्स. So these are the key areas that you have to mention. First is attention to the important areas. Second is problem को resolve कैसे करोगे, identify कर दिया. उसके बाद audit engagement को करोगे so that effective and efficiently आपका चीजें खत्म हो जाए. उसके बाद जब आपने audit engagement को देखा,
ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट भी कर दिया, आप उसकी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस के हिसाब से उनको सेलेक्ट करोगे, उनको वही वाले एरियाज दोगे। एंड लास्ट में जब आपने वो भी देख लिया तो ये नहीं कि वहीं पे उनको छोड़ दो, आप उनको डायरेक्शन एंड सुपरवाइज भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने किसी भी एक्सपर्ट से आपने कुछ अगर वो लिया है, हेल्प ली है, तो उसके साथ आपको कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू नाउ? सो द फर्स्ट इज अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। सेकेंड में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। थर्ड में आपको ईटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है सो दैट आपको ऑडिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में कवर हो जाए। ईटी किस तरीके से होंगी, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है, जो भी आपके एरियाज हैं। फिर उसको आप खाली ऐसे नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू सुपरवाइज देम, यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू गिव डायरेक्शंस टू देम, एंड इन केस यू हैव टेकन सम एडवाइस फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, देन यू हैव टू मेक अ कोऑर्डिनेशन विद देम। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अब मुझे नहीं लगता कि आपको और ज्यादा नीड है, आपको इसे अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा और आपको अच्छे से ये लर्न भी हो गया होगा। आप आईज बंद करके एक बार ट्राई कर लो कि आपको ये लर्न है या नहीं है। आई एम गिविंग यू द 2 minutes एंड देन यू कैन डू दैट। चलो जी, ठीक है। If you want a summary notes of same, please put that in comment box, or maybe you can follow me over the Telegram channel that Audit with the CA Nidhi Kalra, and there you can find the summary notes. आज जैसे ये जो भी आपको keywords हैं, ठीक है, तो ये सब आपको मेरे summary notes में मिल जाएंगे अच्छे से। अभी तो मैं आपको इससे पढ़ा रही हूँ SM से, so that आपको proper understanding हो जाए and you should not feel कि हाँ हमारा कुछ रह गया है, right? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हाईलाइट करनी है। यू कैन हाईलाइट विद मी साइड बाय साइड इन केस यू वांट टू डू दैट, ठीक है। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आएगा, किसके बेसिस पे आएगा, लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। उसके बाद आप उनको क्या देख सकते हो, डायरेक्शंस एंड सुपरविजन, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क डन बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स में अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट हेयर कि एक्चुरियल वैल्यूएशन वाला जो चीज है या कुछ भी लीगल वाला जो चीज है उसमें यू कैन टेक द एडवाइस। तो दीज आर द कीवर्ड्स, ठीक है। अब व्हाई द प्लानिंग इज नेसेसरी, कैन एनीवन टेल मी? अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लो खुद से कि अगर आप ऑडिट की अगर आप किसी भी चीज की प्लानिंग करते हो इन द सीए एग्जाम्स ऑल्सो, व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका वो रिस्क रिड्यूस कर देती है। रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ नॉट स्कोरिंग वेल इन एग्जाम्स, रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस, राइट। तो इसलिए प्लानिंग भी हमारे पास एक रिस्क रिड्यूस करती है। किस चीज का रिस्क रिड्यूस कर सकती है कि ऑडिटर जो है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन नहीं दे, राइट, क्योंकि वो ऑडिट बहुत प्लान करके चल रहा है, वो उस एरियाज पे पहले से ही फोकस करके चल रहा है, वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके चल रहा है। सो अगर आप सारा कुछ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में कर रहे हो, सो देयर आर द चांसेस कि आपका जो रिड्यूस हो जाता है, किसका रिस्क कि आपके ऑडिटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ICAI ने ऐसे प्रॉपर बना भी रखा है और ये भी वही वाले कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसको ऐसे बेनिफिट्स को लर्न कर सकते हो। ज्यादा है भी नहीं है, 6 है बस, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, कि नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग आपका कैसे हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड बाय द ICAI इन द लास्ट एग्जाम्स, नॉट इन द मे बट हाँ मतलब पहले ICAI ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछते रहता था कि प्लानिंग जो है ना वो ऐसा नहीं है कि हाँ यार एक बार आपने प्लानिंग करी यू आर जस्ट डन। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है, वो चलती रहती है, राइट। So it is not a discrete phase of audit, but rather it is a continual and iterative process that often begins shortly after the completion of the previous audit and continues until the completion of the current year engagement, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग अब बस आपने एक बार करी आपका हो गया। जैसे ही आपका लास्ट ऑडिट या प्रीवियस ऑडिट खत्म होता है उसके बाद आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है और वो चलती जाती है जब तक आपका ऑडिट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और क्योंकि वो इसलिए चलती रहती है अगेन कि आपको कुछ अपडेट करना पड़ जाए या आपको कुछ वैसा करना पड़ जाए, तो देन जो आपका प्लानिंग है तो इट शुड गो ऑन, ठीक है। तो ये आपका कुछ वैसा नहीं है। अब आप देखो इसमें
For example, planning includes the need to consider prior to auditor's identification and assessment of risk of material misstatement matters such as you can leave this point, but हाँ आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग में आपके एक्चुअली आता क्या है, कि कितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी एक्सपर्ट्स की, आप मटेरियलिटी कैसे डिफाइन करोगे, ये भी आपका उसका पार्ट है प्लानिंग का। मटेरियलिटी होता है एक बेंचमार्क, कि अगर इस बेंचमार्क से ऊपर मेरी चीजें जाती हैं तो देन यू हैव टू रिपोर्ट इट, यू हैव टू सी, यू हैव टू टेक आउट द सैंपल्स। फॉर एग्जांपल आपने मटेरियलिटी लगा ली कि मेरी 10 लाख से ऊपर कोई रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है, अगर मेरी ट्रांजैक्शन कोई रेवेन्यू की ऐसी है जो 10 लाख से ऊपर जा रही है और आपको लगता है कि वो बहुत मटेरियल है, देन आप उस एरिया को देखोगे, उस ट्रांजैक्शन को देखोगे, उस सैंपल को देखोगे, उसके सपोर्ट्स मंगवाओगे, तो वो मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। तो वो मटेरियलिटी भी बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, दैट वी विल स्टडी, नो वरीज अबाउट दैट, बट वो बेंचमार्क आपको डिसाइड करना है कि इसके ऊपर की सारी चीजें मुझे कंसिडर करनी है, इसके नीचे वाली मुझे सारी चीजें कंसिडर नहीं करनी, बिकॉज अगेन ऑडिट जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, यू आर नॉट हेयर टू वाउच एंड वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, यू हैव टू चेक कि कौन सी ट्रांजैक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट मटेरियलिटी, जिससे आपको लगता है कि यार अगर इससे ऊपर मेरी चीजें जा रही हैं और वो अनचेक्ड रह गई है ना, तो मे बी इससे किसी का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स, बिकॉज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत लोग यूज करते हैं, स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज कर सकती है। तो जो भी आपका इकोनॉमिक डिसीजंस होता है, जो भी आपके डिसीजंस लेते हैं कि किसी में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, सो दैट वी टेक ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। और अगर हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत हो जाएंगी, हमने मटेरियलिटी को ही नहीं कंसिडर किया, हमने कुछ भी कर दिया, तो अगेन इट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन आवर ऑडिट एज वेल एज टू द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो हमारा जो डिटर्मिनेशन है ना मटेरियलिटी का, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटिटी कौन से एनवायरनमेंट में रेगुलेट कर रही है। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन वाली किसी अलग उसमें कर रही होती है, ठीक है, वो TRAI होता है, इंश्योरेंस वाली का अलग होता है, FRF हमें पता होना चाहिए। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए whenever you are doing the planning। समझ में आया? तो these are the certain things। अब हमारे पास आते हैं कि प्लानिंग में जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि एक उसमें होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और दूसरी उसमें हमारे पास होती है प्लानिंग एक्टिविटीज। यही हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखो, ये ना, एक होती है हमारे पास प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और एक हमारे पास होती है प्लानिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अब जब हम प्रिलिमिनरी कर रहे हैं ना, तो अगेन प्रिलिमिनरी की वी हैव द 3 पार्ट्स। सी हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव? We have 3 parts. So the first is performing the procedures regarding the continuance of the client relationships, फिर then evaluation with the ethical requirements and then understanding of the terms of engagement, ठीक है। तो these are the 3 things that we consider in the preliminary engagement activities। ये देखो, आप इसको ना यहाँ से कर सकते हो कि performing the procedures regarding the continuance of the relationship, evaluating the compliance with ethical requirements, establishing an understanding of the terms of engagement to ensure that there is no misunderstandings, ठीक है। और उसके बाद जब प्लानिंग एक्टिविटीज में हमारे पास आएगा तो उसमें हमारे पास 2 चीजें आ जाएंगी, एक हमको स्ट्रैटेजी आ जाएगी, एक हमारे को प्लान आ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। अब मैं आपको अगर फर्स्ट चीज बताती हूँ ना, तो प्लानिंग एक्टिविटीज अगर मैं आपको बताती हूँ जो प्लानिंग के प्रोसेस में इंक्लूड है, सेकंड पार्ट प्लानिंग एक्टिविटीज। तो प्लानिंग एक्टिविटीज में यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर द ऑडिट, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि जब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑडिट की, तो वो क्या करती है, हमारे पास स्कोप सेट करती है, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं ना, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का स्कोप बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इज द पार्ट ऑफ द ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो अनटिल एंड अनलेस आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से डिफाइंड होगी, आपको डायरेक्शन अच्छे से पता होंगे, आपको टाइमिंग अच्छे से पता होंगे कि आपको कब तक ऑडिट खत्म करना है, देन ओनली इट विल हेल्प यू टू गाइड द छोटा सा एक ऑडिट प्लान भी बना दो। तो आपका ये एमसीक्यू का पार्ट है, दिस इज द एमसीक्यू का पार्ट कि आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या करती है, इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दे गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। अब जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आप क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करते हो, ठीक है। तो आपको जब फैक्टर्स हमने देखने हैं जो आपको कंसिडर करने हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी, या फिर आपको कोई भी फैक्टर्स देखने हैं कि मतलब मेरी स्ट्रैटेजी में क्या क्या आना चाहिए, होता है ना कि द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी द ऑडिटर सब्जेक्ट टू कंप्लीशन मैटर्स सच एज, आपको कौन कौन से मैटर्स ध्यान में रखने हैं। सो द फर्स्ट इज द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय,
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इन्वेंट्री बहुत ही हाई रिस्की एरिया है या मेरी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही हाई रिस्की एरिया है, तो मैं रिसोर्सेज में अपना जो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं मैं उसी हिसाब से लगाऊंगी। समझ में आया? तो मेरे जो इन्वेंट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स के एंगेजमेंट टीम के एक्सपर्ट्स हैं वो सेम थोड़ी होंगे, सबको अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्की जो चीज है तो मैं अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से लगाऊंगी, सच एज कि आपका जो हाई रिस्क एरिया है उसमें मेरे पास कौन सा रिसोर्स जाएगा एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स, और जो लो रिस्क एरिया उसमें कौन सा जाएगा। समझ में आया? सेकेंड हमारे पास जो चीज आती है वो आएगी द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज टू एलोकेट टू द स्पेसिफिक एरिया। एक सेकेंड, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटेरियल लोकेशन। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गया कि हमको एक्सपीरियंस मेंबर्स लेके जाने हैं, क्योंकि ये हमको शॉर्टलिस्ट हो गया कि अच्छा इन्वेस्टमेंट में ये वाले लोग जाएंगे, इन्वेंट्री में ये वाले लोग जाएंगे। अब कितने लोग जाएंगे? अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। ठीक है, अब उसके बाद है व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड। कभी कभी क्या होता है, कोई टेस्टिंग हम करते हैं कट ऑफ डेट्स पे। कट ऑफ डेट्स पे हमको टेस्टिंग इसलिए करनी होती है क्योंकि हमको करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में टेस्टिंग करनी है। हमको ये देखना इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 तक की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली है। तो हम मे बी 29 या 30th को जाते हैं ऑब्जर्व करने इन्वेंट्री को। ठीक है, कि हमारे पास सारी इन्वेंट्री इसमें शो हो रही है या नहीं हो रही। सो दैट इज द कट ऑफ डेट का प्रोसीजर जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये जो हमारे पास एरियाज हैं या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इनको कब एम्प्लॉय करना है, या तो कट ऑफ डेट पे करना है या बीच में भी सितंबर में, मार्च में, क्वार्टरली इनमें भी कर सकते हैं। और उन जब हमने ये सब वो डिसाइड कर लिया रिसोर्सेज को, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे इनको कैसे गाइड करना है। कोई बीच में मीटिंग्स कंडक्ट करनी है क्या, या कोई टीम ब्रीफिंग देनी है। तो these are something which you have to decide while you are making the audit strategy. So the first thing is, let me tell you, resources to deploy for specific audit areas, high risk, involvement of experts on complex matters, amount of resources. ठीक है, अब उसके बाद when these resources are to be applied, interim or cut off when resources, last how such resources are managed, directed and supervised, team briefing करनी है क्या, और how the engagement partner and manager reviews to take the place. तो ये सब आपको जो चीजें हैं ये इसमें की एरियाज हैं जो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट इज द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक एरियाज, सेकेंड इसमें हमारे पास आएगा अमाउंट, थर्ड इसमें आएगा व्हेन, फोर्थ इसमें आएगा हाउ। समझ आया? रिसोर्सेज तो आपने डिप्लॉय करने ही है, अमाउंट, व्हेन, हाउ, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब जब आप चीजें देख रहे हो ये वाली, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। स्कोप ऑफ एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि उस एंटिटी का स्कोप क्या है, वो कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, उसके बिजनेस सेगमेंट्स किस तरीके की है, उसका नेचर कैसा है, उसकी इंडस्ट्री रेगुलेटर कैसे हैं। हम टेलीकम्युनिकेशन में जो इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है उसकी स्ट्रैटेजी हम रिटेल में नहीं लगा सकते, या जो रिटेल की स्ट्रैटेजी है वो हम इंश्योरेंस में नहीं लगा सकते, इंश्योरेंस की स्ट्रैटेजी हम होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं लगा सकते। तो करेक्टरिस्टिक्स देखो आप एंगेजमेंट का, एंगेजमेंट मीन्स जो आपके पास क्लाइंट है उसका आप करेक्टरिस्टिक्स देखो और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करो। ठीक है, तो जो भी आपके पास एप्लीकेबल एफआरएफ है, ठीक है, नेचर क्या है बिजनेस सेगमेंट का, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को देखोगे तो दे हैव देयर अलग से रिपोर्टिंग के क्राइटेरियाज, उनको हमारा जैसा नहीं लगता। एनडीएस एप्लीकेबल जो होती है उसको अलग से लगता है एज डिफाइंड इन एफआर का सब्जेक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा कि इनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से डिफाइंड है, इस पे एफआरएफ कौन सा लग रहा है, नेचर कैसा है, और एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस इन द प्रीवियस ऑडिट्स। तो अगर आपने कोई भी प्रीवियस ऑडिट में ऑडिट एविडेंसेस तो लिए होंगे ना, उसका इस बार के ऑडिट में कितना यूज है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लास्ट टाइम कुछ डेटर के कंफर्मेशन के अलावा कुछ और भी चेक किया था, तो उस ऑडिट एविडेंस का इस बार के ऑडिट पे कितना यूज जायज है, कितना यूज रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसके स्कोप को डिफाइन करना है। समझ में आया? तो उसके बाद बिफोर मूविंग अहेड, मैं एक बार आपको फिर से ना सारा ही रिवाइज करा देती हूँ जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है। सो द फर्स्ट इज द प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीज आती है, एक आता है आपके पास ऑडिट स्ट्रैटेजी और एक आता है डेवलपिंग द प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी जब आप एस्टैब्लिश करते हो तो उसमें आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज आप अप्लाई करोगे, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स एरियाज में और नॉन कॉम्प्लेक्स एरियाज में, अमाउंट उसका किसका, रिसोर्सेज का। ठीक है, कब करनी है, कट ऑफ डेट पे करनी है या इंटरिम पीरियड में करनी है, हाउ मतलब कौन से स्टेज पे, मतलब वो लोग कैसे उसको मैनेज करोगे, डायरेक्ट करोगे। फिर उसके बाद है फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी में आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप, कौन सा तो वो एफआरएस एप्लीकेबल है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है एज पर द इंडस्ट्री रेगुलेटर।